ज्ञान को जो है ജോസിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം. അതിന് മുമ്പ് 26 ശുശ്രൂഷ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो सिस्टर को सेकंड शिफ्ट जाना होगा उसके पहले ही मैं प्रभु भोज का भी सेवकाई खत्म करना चाहता हूँ. നാം ഇന്ന് വായിച്ച യെശയ്യ 53 അധ്യായം ഇതിനു മുൻപും നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. आइज़ाया 53 चैप्टर जो है हमने इसके भी पहले कई बार पढ़े हैं. യെശയ്യാവ് 50s ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ദാസനെ കുറിച്ചുള്ള ഗീതമാണ്. आइज़ाया 50 से लेकर 60 तक का अध्याय जो है ये यीशु मसीह के कष्टों को सहा हुआ उसके बारे में वर्णन है. यहाँ पर യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് ഏകദേശം 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു യെശയ്യാവ് ശുശ്രൂഷിച്ചത്. आइज़ाया जो है यीशु मसीह के 700 साल पहले लिखा गया भविष्यवाणी है. പക്ഷേ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ചിത്രീകരണം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. मगर यीशु मसीह के बारे में साफ साफ भविष्यवाणियां यहाँ पर हम देख पाते हैं. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യെശയ്യാവ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആസ് എ സഫറിംഗ് സെർവന്റ് ഓഫ് യാഹ്വേ, യഹോവയുടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ദാസൻ. आइज़ाया यहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर का दुख उठाने वाला एक दास के रूप में उसको वहां पर यहाँ पर दर्शाया गया है. യഹോവയുടെ ദാസൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ മെസ്സിയാനിക് ടൈറ്റിൽ, മശിഹൈക പേരാണ്. एक मसीहा का दास कहा जाए तो एक टाइटल या नाम दिया गया है. യഹോവയുടെ ദാസൻ എന്നത് മശിഹായുടെ ഒരു പേരാണ്. यहोवा का दास कहा जाए तो मसीहा का एक टाइटल है ये. അതുകൊണ്ട് യേശു യഹോവയുടെ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का दास बनकर यीशु मसीह होता है, ऐसा नहीं है. എന്നാൽ പിതാവിനോടുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തെയും അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. यीशु मसीह का जो पिता परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसको दर्शाता है. അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദാസൻ എന്നത് പ്രവചനപരമായി മശിഹൈക മെസ്സിയാനിക് ടൈറ്റിലാണ്, മശിഹായിക്കുള്ള ഒരു പേരാണ്. मसीहा को एक टाइटल या नाम दिया जाता है कि वो परमेश्वर का जो दास है कर. ദാവീദിന്റെ വേര് എന്നത് വേറെ ഒരു പേരാണ്. और उसको दाऊद का मूल भी कहा जाता है. എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഡേവിഡ്, ഇശായിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ മുള എന്നൊരു പേരുണ്ട്. और दाऊद के घराने का एक स्थान डाली कहा जाता है उसे. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മശിഹൈക പേരുകൾ യേശുവിന്. और इस प्रकार के कई मेसियानिक नेम्स जो है, नाम जो है यीशु मसीह को दिया जाता है. അതിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മശിഹൈക നാമം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? जो पुराने कलाम में जो है मसीहा का पहला नाम जो लिखा है, क्या आप लोग जानते हैं उस नाम को? फर्स्ट messianic title given in the Old Testament. मेसियानिक नामों में से सबसे पहला नाम जो पुराने नियम में दिया जाता है, किसी को याद हो? Of course. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി, उसको स्त्री का संतान कहा गया है उत्पत्ति में. ഉൽപ്പത്തി 3:15 उत्पत्ति का 3:15 में कहा गया है उसे. അത് പ്രോട്ടോ ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം, പ്രോട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിസം और സുവിശേഷം. और सबसे पहला यीशु मसीह का सुसमाचार भी उसे कहा जाता है. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് തുടങ്ങി ഒത്തിരി പേരുകൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മശിഹ എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
स्त्री का संतान कहकर शुरुआत होता है और उसके बाद में कई नामों से उसे दर्शाया गया है। हम पुराने नियम में ही देख सकते हैं वो। അതിൽ വളരെയധികം പേരുകൾ ഉള്ളത് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. और सबसे ज्यादा नाम जो है यीशु मसीह का वो ഐസയ്യ किताब में ही देख सकते हैं। യെശയ്യ 51 50 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 53 54 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ്, തേജസ്കരണം എന്നിവയെ കുറിച്ചും പ്രവാചകൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഐസയ്യ 50 से लेकर जो है 54 तक जो है यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा उसके बारे में काफी वर्णन है। उसके बाद में उसका दफनाए जाना और उसका जी उठना, इसके सब के बारे में भविष्यवाणी की गई है। അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ये सब बातें जो हैं हम जो है उसके भीतर में जाकर गहराई से समझने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। ഇന്ന് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് ये പങ്കുവയ്ക്കുക. प्रभु भोज के संदर्भ में जो है उससे उसका एक छोटा सा भाग को मैं आप लोग के सामने वर्णन करना चाहता हूँ। സ്തോത്രം. തിരുവത്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. as a celebration of the kenosis Jesus made. यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कष्ट सहा उसका जो एक आनंदमय वर्णन यहाँ पर प्रभु भोज के संदर्भ में वचन में दिया गया है। उसके सामने उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें करना चाहूंगा बाद में। സ്തോത്രം. So Lord's Supper is a celebration. ഇത് ഒരു ആഘോഷമാണ്. ये प्रभु भोज का सेवकाई जो है ये एक हर्षोल्लास का समय होता है। നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हम लोगों को स्मरण करने की कई सारी बातें हैं। മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പുറകോട്ട് നോക്കി കാണാനും മുൻപോട്ട് നോക്കി പ്രത്യാശിക്കുവാനും ഒത്തിരി വകയുള്ളതാണ് ഈ തിരുവേശം. ये प्रभु भोज को देखने के बाद हम लोग के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि हम पीछे मुड़कर भी देखें और आगे आशा के साथ परमेश्वर के साथ का जीवन को भी देखें। പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ചില ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. कई इतिहास की बातें जो हैं हम पीछे मुड़ने पर हम देख पाते हैं। മുൻപോട്ട് നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ കാര്യങ്ങൾ. और मसीह जीवन में जो आशा है उस आशा की ओर हम आगे देखते हैं। ഇത് രണ്ടും കൂടെ കലർന്നതാണ് ഈ തിരുവേശം. ये दोनों का एक मिश्रण कहा जाए तो ये प्रभु भोज है। അതോടൊപ്പം an inward vision, അകത്തേക്കും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണമെന്നുമാണ്. और इसके साथ में है हम लोग आगे पीछे तो देखते हैं, उसके साथ में हम भीतर में भी अपने आप में अंदर देखना चाहिए। അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യണം എന്ന്. इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को जांच कर देखिए। അങ്ങനെ ഈ 3 ദർശനങ്ങൾ ഈ തിരുമേശയുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട്. इस प्रकार के 3 दर्शन जो हैं इस प्रभु भोज में पाया जाता है। അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് അല്പമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. आज के दिन में उसके एक विषय के बारे में आप लोगों से संक्षिप्त में बातें करूंगा। Celebrating the Lord's Supper as Jesus emptied himself of very many things. യേശു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ചിലതിന്റെ ഒരു ആഘോഷം മാത്രം. यीशु मसीह ने अपने आप को पूर्णतः खाली करा दिया था मनुष्यों के लिए। वो उस खाली क्या क्या बातों में उसने अपने आप को शून्य बनाया, उसके एक विषय के बारे में हम लोगों को आनंदमय विषय आप लोग को सीखना है आज। ഇന്നത്തെ കണക്കിന് 8 കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. प्रभु की आत्मा ने मुझे 8 बातें दी है जिसमें पवित्र यीशु मसीह अपने आप को शून्य बना देते हैं। മുൻപോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചാൽ അതും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും. अगर पवित्र आत्मा ने इससे भी ज्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी दी तो मैं आगे आप लोगों को उस विषय में सिखाऊंगा। ആ 8 ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. वो 8 विषय मैं आप लोग के सामने आज रख पाऊंगा कि नहीं मैं जानता नहीं। നാം ഈ യെശയ്യ 53 അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും കുറിച്ചാണ് വായിച്ചത്.
हमने यहाँ पर यीशु मसीह ने सहा हुआ कष्टों के बारे में और आने वाले दिनों में कहीं कैसे महिमामय होने वाला है उस विषय में हमने इसाइया 53 में पढ़ा। യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. हमको धीरज देने वाला और आनंद हमको हमारे अंदर डालने वाला एक विषय है यीशु मसीह के बारे में कोई भी बात को सीखना। അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. इसीलिए किसी भी समय में किसी भी अवस्थाओं में यीशु मसीह के बारे में सीखना हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है। യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് തിരുവെഴുത്ത് അധിക ഭാഗങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. यीशु मसीह के बारे में आप लोग को प्रदर्शित करने के लिए वचन में अधिकतर स्पेस इस्तेमाल किया गया है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും നമുക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. इसीलिए हमारे दुख के समय में हो या आनंद के समय में हो हमको किसी भी अवसर में यीशु मसीह के बारे में सीखना जरूरी है। യേശുവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഫിലിപ്പിയർ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. फिलिपी दूसरा अध्याय में पौलुस जो है यीशु मसीह के बारे में काफी वर्णन किया है। 6, 7, 8 वाक्यങ്ങൾ उसका 6, 7 और 8वां वचन पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. മലയാളത്തിൽ തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു. वो यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया के लिखा है। ഇംഗ്ലീഷിൽ emptied എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? He emptied himself. സ്തോത്രം. ആ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് കെനോസിസ് തിയറി എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം വേദപണ്ഡിതാക്കൾ പറയാറുള്ളത്. यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया है, उसमें से एक सिद्धांत निकलता है जिसको केनोसिस सिद्धांत कहते हैं। കെനോസിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം empty fully, പൂർണ്ണമായും ഒഴിക്കുക, ശൂന്യമാക്കുക എന്നാണ്. यूनानी शब्द केनोसिस का मतलब ये होता है कि उसको पूर्णतः खाली कर देना या शून्य कर देना। ഒരു പാത്രം നേരെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് കമഴ്ത്തി വെക്കുന്ന, ഒന്നും അതിലില്ലാതെയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കെനോസിസ്. वो ऐसा है जैसे एक बर्तन है जिसमें कुछ रखा हो मगर उसको ठीक उसका ढक्कन हटाकर उल्टा कर दिया जाए तो उसमें खाली हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं। യേശു തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചു എന്നാണ് നാം പറയുന്നത്. हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്തിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് തന്നെ ശൂന്യനാക്കിയത്? किस विषयों के आधार पर जो है यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। സ്തോത്രം. അതാണ് ഞാൻ 8 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. इसी विषय में मैंने कहा कि 8 बातें हैं उसमें। അതിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. और इसमें से पहला भाग हम सीखते हैं। अब തിരുമേശയിലേക്ക് നാം അടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ ഓർക്കണം. प्रभुभोज के संदर्भ में हमको यीशु को स्मरण करना है। യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം ഓർക്കുന്നത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ച കാര്യമാണ്. प्रभुभोज के संदर्भ में आज हम सोचते हैं तो यीशु मसीह अपने आप को शून्य किस प्रकार कर देते हैं। ഏറ്റവും ഒന്നാമത് നാം ആ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. वो सबसे पहले भाग जो है हम उस वचनों में ही देख पाते हैं। 6-ാം വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചോളൂ. उसका 6वां वचन एक बार पढ़ें। फिलिपी 2:3-6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की कुछ वस्तु न समझी. അവിടെ നാം കാണുന്നു ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് യേശു विचारिച്ചില്ല. परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का वो अपने वश में न वो वस्तु वश में रखने का वस्तु न समझा उसने। അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു ഒഴിച്ചത് പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വമാണ്. वो पहला जो जिस विषय में शून्य बन गया वो है परमेश्वर के वो स्वरूप में था। वो the equality with God. He emptied himself of the equality
with the Father. ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം യേശു ഉപേക്ഷിച്ചു. वो परमेश्वर के तुल्य व्यक्ति था, मगर उस स्थान को अब वो शून्य कर देता है. ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബരാബറി യേശു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. परमेश्वर के साथ की बराबरी को वो अपनाना नहीं चाहता, बस उसको छोड़कर शून्य बन जाता है. സ്തോത്രം. യേശു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് co-equal with the Father in everything. പിതാവായ ദൈവത്തോട് സകലത്തിലും സമത്വമുള്ളവനാണ് യേശു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. हमने वचन में इस प्रकार सीखा है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ में सभी रूप अवस्थाओं में तुल्य है. He is co-equal in eternity. നിത്യത്വത്തിൽ പിതാവിനോട് യേശു തത്തുല്യനാണ്. वो जो अनंत काल में यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ में तुल्य है या बराबर है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है. In existence, Jesus is equal with the Father. अस्तित्वത്തിൽ യേശു പിതാവിനോട് തത്തുല്യനാണ്. और अस्तित्व में भी यीशु मसीह पिता के तुल्य है. In deity, Jesus is equal with the Father. ദൈവത്വത്തിൽ യേശു പിതാവിനോട് തുല്യനാണ്. और प्रभुत्व में भी परमेश्वर यीशु मसीह जो है परमेश्वर के तुल्य है. In authority, അധികാരത്തിൽ പിതാവിനോട് തുല്യനാണ്. और सामर्थ में भी जो है परमेश्वर के तुल्य है यीशु मसीह. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या ये बातों को समझते हैं? സ്തോത്രം. In inheritance, അവകാശങ്ങളിൽ യേശു പിതാവിനോട് തത്തുല്യനാണ്. और वसीयत के नाम में भी जो है परमेश्वर और यीशु मसीह तुल्य है. സ്തോത്രം. In glory and majesty, മഹത്വത്തിലും തേജസ്സിലും യേശു പിതാവിനോട് തുല്യനാണ്. महिमा और तेज के संदर्भ में भी पिता परमेश्वर और यीशु मसीह तुल्य हैं. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ യേശു പിതാവിനോട് സകലത്തിലും തുല്യനായിരുന്നു. इस प्रकार से यीशु मसीह पिता के साथ में सभी बातों में तुल्य था या बराबर था. എന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യേശു ആദ്യം നീക്കിവെച്ചത് പിതാവിനോടുള്ള സമത്വമാണ്. वो हमको और आपको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए उस सभी अवस्थाओं को जो पिता के साथ तुल्य था, उस अवस्था को वो छोड़ना या त्यागना तैयार हो जाता है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ അഥവാ വിചാരിച്ചില്ല. और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखना वस्तु न समझा. സ്തോത്രം. നാമൊക്കെ പലരോടും തുല്യരല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉന്നതരായ പലരോടും തുല്യരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവരാണ്. हम दूसरों के या कोई बड़ी पदवी के व्यक्ति के साथ समानता हमारी नहीं है, मगर हम अपने आप को ऐसा प्रकट करना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति के, उस महान व्यक्ति के समान व्यक्ति है कहकर. ഇവിടെ യേശു ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരോടായിരുന്നില്ല തുല്യത പുലർത്തിയിരുന്നത്. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह धरती पर जीवित कोई भी महान व्यक्ति से अपनी तुलना करना नहीं चाहता है. സ്തോത്രം. പകരം അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തോട് തത്തുല്യനായിരുന്നു. वो साक्षात परमेश्वर के स्वरूप में था. ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പിതാവിനോട് അവൻ തുല്യനായിരുന്നു. आराधना स्वीकारने के लिए वो परमेश्वर के साथ में तुल्य था यीशु मसीह. സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടുവാനുള്ള യോഗ്യതയിൽ അവൻ പിതാവിനോട് തുല്യനായിരുന്നു. अगर कोई किसी से भयभीत होता है परमेश्वर से, उतना ही भयभीत जो है यीशु मसीह से भी भयभीत होता है. He was equally worthy of worship and fear of God, the Father. और कोई भी आराधना करने के लिए योग्य व्यक्ति है, वो आराधना परमेश्वर है, उसी के तुल्य यीशु मसीह भी है. और जो डरना चाहता है परमेश्वर को देख के, उतना ही डर यीशु मसीह को भी देख के होता है. പിതാവിനോട് തുല്യനായിരുന്നവൻ. वो पिता के तुल्य था सभी बातों में.
എന്നാൽ യേശു ആ തുല്യതയെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. मगर यीशु मसीह उसको तुल्य समझने के लायक समझा नहीं उसे. ഒരുപക്ഷേ ദൈവദൂതന്മാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാണും. कई शाम मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत भी जो है आश्चर्यचकित हो गए होंगे ये बात को देखकर. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. क्योंकि ये बातें जो घटी है वो त्रिएक परमेश्वर में तीनों में आपस में हुआ होगा. സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. शायद स्वर्गदूतों को भी ये तीनों के बीच में क्या घटी है इन बातों को जानते नहीं होंगे वो. ഗബ്രിയേൽ പോലും കാര്യം അറിഞ്ഞത് മറിയയുടെയും യോസഫിന്റെയും അടുക്കലേക്ക് അയച്ചപ്പോഴാകാം. ये गब्रिएल भी शायद उसको जानता नहीं होगा, मगर उसको बोला कि मरियम और यूसुफ पे जाके ये बातें सुना, तभी वो जाना होगा कि ऐसा होने वाला है कर. കാരണം उसका कारण क्या है? ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാരുമായി ഹൃദയം പങ്കുവെക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധമൊന്നുമില്ല. क्योंकि परमेश्वर को जो है अपने दिल से प्रेम बांटने का स्वर्गदूतों के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उनका. ആവർത്തിക്കുന്നു, God did not have or even doesn't have even today that loving relationship with the heavenly angels to share his heart. परमेश्वर का जो है स्वर्गदूतों के साथ भी ऐसा कोई प्रेम का रिश्ता नहीं है जिससे कि अपना दिल को बांट सके उनके साथ. സ്തോത്രം. അതേസമയം മനുഷ്യനോടോ और उसी समय मनुष्य के साथ का कैसा रिश्ता है उसका? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. എഫേസ്യർ 1:9-10 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അവൻ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം നമ്മോട് അറിയിച്ചു എന്ന്. इफिसियों 1:9 में हम पढ़ सकते हैं कि उसने अपने हृदय की इच्छा को मनुष्य के सामने प्रकट करा है. इच्छा का भेद हम पर प्रकट किया. Praise God. God revealed the mystery of His will to us. उसकी इच्छा की जो भेद जो है मनुष्यों को प्रकट करना चाहता है. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവദൂതന്മാരുമായി ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നും പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രകൃതയില്ല. मगर स्वर्गदूतों के साथ इन बातों को बांटने का कोई मन में इच्छा नहीं है उनकी. സ്തോത്രം. കാരണം ദൂതന്മാരുമായി ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹബന്ധമില്ല. क्योंकि परमेश्वर का जो है स्वर्गदूतों के साथ वैसा प्रेम का रिश्ता नहीं है. ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മെ മനുഷ്യനെ മാത്രമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. और इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, असली प्रेम जो है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए है. ദൂതന്മാരോടോ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയോടോ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹമില്ല. उसके बनाए कोई भी सृष्टि से हो या स्वर्गदूतों से हो, उस प्रकार का प्रेम का बंधन या रिश्ता नहीं है उनका. സ്തോത്രം. അവർക്കാർക്കും വേണ്ടി യേശു തന്നെത്താൻ ശൂന്യനാക്കിയില്ല. और उन सभी के लिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य बनाने का सोचा भी नहीं और नहीं किया भी. ഇന്നലെയും പകലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും. कल सुबह भी एक बात को बताया, वो आपको स्मरण में होगा. ദൂതന്മാരും ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സാത്താനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. हमने कल बताया था शैतान और मनुष्यों के बीच का अंतर. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അൺറിപ്പന്റന്റ് റിപ്പന്റൻസ്, മനുഷ്യന് മാനസാന്തരത്തിന് അവസരമുണ്ട്, സാത്താൻ അതില്ല. मनुष्यों को मन फिराव का अवसर प्राप्त है, शैतान को मन फिराव का अवसर प्राप्त नहीं है. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് മാനസാന്തരപ്പെടാം, സാത്താൻ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. वैसे ही मनुष्य मन फिराव कर सकते हैं, शैतान मन फिराव भी नहीं कर सकता. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ സാത്താൻ എന്നതിന് പകരം ദൂതൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. आज के दिन में शैतान की जगह पर स्वर्गदूत कहूंगा. ദൂതന്മാരും നാമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം हमारे और स्वर्गदूतों में जो अंतर है എന്താണത്? वो क्या है? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു. അവയോടൊന്നും ദൈവത്തിന് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പൊടിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച മൺകുടകളിൽ പാർത്ത പുഴു പോലെ ചതഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മോട് അവന് സ്നേഹം. मगर स्वर्गदूतों से परमेश्वर प्रेम का रिश्ता नहीं रखता, मगर मिट्टी से बना हुआ और सिर्फ कीड़े के समान जो बिना शक्ति के हैं, वैसे मनुष्यों से प्रेम का रिश्ता रखना चाहते हैं परमेश्वर. സ്തോത്രം. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന തെളിവ് उसका एक उदाहरण है. ദൂതന്മാർ പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു.
स्वर्गदूत जो है कई बार पाप किए हैं वो, ആ സമയത്തൊക്കെ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്താണ് കരുതിയത്? और पाप करने वाले स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने क्या किया उनको? ममता तैयार किया है പാപം ചെയ്ത സ്വർഗദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയത് അഗ്നികുണ്ഡമാണ്, നരകമാണ്. स्वर्गदूत जब पाप करते हैं उनके लिए परमेश्वर जो रख रखा है वो है आग का कुंड या नरक कहते हैं उसे. എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്താ ദൈവം കരുതിയത്? मगर पाप करने वाले मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? an altar. उनके लिए एक बलि का वेदी रखा है. സ്തോത്രം. യാഗവേദിയാണ്, ബലിപീഠമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത്. हमारे लिए हमारे पाप से छुड़ाने के लिए एक बलि का वेदी बना दिया उसने. എവിടെ? कहाँ पर बनाया वेदी को? കാൽവറിയിൽ. उसने कलवरी में बनाया. കാൽവറിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോൽഗോഥ. कलवरी का दूसरा नाम है गोलगोथा. കാൽവറി എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. कलवरी शब्द जो है हम शायद बाइबल में देख नहीं पाएंगे, ഗോൽഗോഥ എന്നുണ്ട്. मगर गोलगोथा को शब्द देख पाएंगे. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. दोनों एक ही है. നാം ഇന്ന് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽവറി എന്നുള്ളതാണ്. हम अक्सर यूज करते हैं कलवरी शब्द को. അപ്പോൾ കാൽവറിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവേദിയാണ് ഒരുക്കിയത്. कलवरी में एक बलि का वेदी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया. രണ്ടിടത്തും അഗ്നിയുണ്ട്. दोनों जगह पर आग या अग्नि दिखाई पड़ता എവിടെ? है. നരകത്തിലും യാഗവേദിയിലും. और नरक में भी और बलि के वेदी में भी आग को देखा जा सकता പക്ഷേ है. വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. उसका दोनों का अंतर हम जान सकते हैं. നരകത്തിൽ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ നിത്യാഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കുന്നു. जो पाप करने वाले स्वर्गदूत हैं अनंत काल के लिए उनको नरक की अग्नि में धक्का दिया जाता है. എന്നാൽ യാഗവേദിയിലെ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായി വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ യാഗമാക്കുന്നു. मगर हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को प्रायश्चित बलि के तौर पर उस परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में कलवरी पर टांगा जाता है उसे. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരുവത്താഴ സമയത്ത് ആവർത്തിച്ചു പറയാറുള്ളത്, ആ ദൈവത്തിന്റെ യാഗവേദിയുടെ ബോർമയിൽ വെന്തെരിഞ്ഞ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്ന ജീവന്റെ അപ്പമായി തീർന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ തിരുവെഴുത്ത്, ഈ തിരുവത്താഴം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. परमेश्वर की क्रोधाग्नि के जो हालेलुया उसके जो अवन में जो है तप कर जलाकर निकाला हुआ जीवन का रोटी यीशु मसीह, इस रोटी को तुल्य कहा जाता है हम उसे. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? क्या आप लोग हमारे संग हैं? അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞത്. हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का जो तुल्य जो होने की अवस्था को वो शून्य बना देता है. ദൂതന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു. स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं था. എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യമാണെന്നാണ് ഓടി വരുന്നത്. इब्रानियों 2 का 17वां वचन पढ़ते हैं. Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Then, For in that he himself hath suffered, being tempted, he is able to succor them that are tempted. 16 also, 16. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. കാരണം എന്താണ്? സ്വർഗദൂതന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനല്ല യേശു വന്നത്. क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं, मनुष्यों को बचाने के लिए आए. അവിടെ യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോസ്തലൻ സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവൻ വന്നു. वहां पर प्रेरित जो है इजरायली लोगों के संबंध में कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि अब्राहम के संतानों को बचाने के लिए. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ.
സ്തോത്രം. യേശു ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം ഉപേക്ഷിച്ചത് ദൂതന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കാനല്ല. यीशु मसीह परमेश्वर के साथ की तुल्यता को शून्य बनाया और स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं था, പിന്നെ ആദാമ്യ വർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ. आदम के वंशजों को बचाने के लिए. സ്തോത്രം. ആരുടെ രൂപത്തിലാണോ യേശു വന്നത് അവരെ വീണ്ടെടുക്കാനാ. जिसके स्वरूप में यीशु मसीह इस धरती पर आए उनको बचाने के लिए, जो कि मनुष्य हैं. ദൂതന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ദൂതരൂപത്തിൽ യേശു വന്നേ. अगर स्वर्गदूतों को बचाने के लिए आते तो स्वर्गदूतों के स्वरूप में आते. ഏതെങ്കിലും പക്ഷിമൃഗാദികളെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ അവയുടെ രൂപത്തിൽ യേശു വന്നേ. या कोई पक्षी जानवरों को बचाने आते तो वो स्वरूप में आते परमेश्वर. എന്നാൽ യേശു വന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ. मगर यीशु मसीह धरती पर आए मनुष्य के स्वरूप में. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർ 2:6-7 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിലായി. इसीलिए फिलिपी 2:7 में कहता है कि वो मनुष्य का स्वरूप में हो गया. വേറെ ഒരു രൂപത്തിലും അല്ല അവൻ വന്നത്. वो और किसी रूप में नहीं आया धरती पर. അതാണ് എബ്രായർ 2 നമ്മൾ വായിച്ചത്. ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല അവൻ വന്നത്. इब्रानियों की किताब में पढ़ा स्वर्गदूतों को संभालने के लिए वो नहीं आया. നമ്മെ മനുഷ്യജാതിയെ ആദാമ്യ വർഗത്തെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ. आदम के वंशज या अब्राहम के वंशजों को बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आए. അപ്പോൾ യേശു ഉപേക്ഷിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിതാവിനോടുള്ള ഇക്വാലിറ്റി, പിതാവിനോടുള്ള തുല്യത. परमेश्वर के साथ की तुल्यता को समाप्त कर दिया यीशु मसीह, ताकि मनुष्य को बचाया जाए. എന്നിട്ട് അവൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ. और फिर वो अपने आप को मनुष्य के रूप में धर लिया. സ്തോത്രം. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ നിർത്താം. और उसके साथ में एक और बात कहकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ശൂന്യമാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഡീറ്റി. സ്തോത്രം. ദൈവത്വത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. वो परमेश्वर का स्वरूप में जो खूबसूरती था, उसकी खूबसूरती को वो शून्य कर देता है, ताकि हमें बचाने के लिए. സ്തോത്രം. He himself was God. वो खुद ही परमेश्वर था. He was not only equal to God, but rather he himself was God. ദൈവത്തോട് സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, താൻ തന്നെ പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നു. यीशु मसीह परमेश्वर के सिर्फ तुल्य ही नहीं था, वो खुद भी परमेश्वर था. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? സ്തോത്രം. യേശു സ്തോത്രം സ്വയം ദൈവമായിരുന്നു. यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर था. സ്തോത്രം. ഇച്ചിരി ഇൻഫീരിയർ ഗോഡ് ആയിരുന്നോ? ഇച്ചിരി കൊച്ചു ദൈവം? परमेश्वर से उसमें थोड़ी सी कम सामर्थ्यवान परमेश्वर है क्या यीशु मसीह? नहीं, थोड़ा भी नहीं. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിച്ചതുപോലെ കോ ഈക്വൽ എവ്രിതിങ്. परमेश्वर के समान तुल्य सभी बातों में. Even in the beauty of deity also he was equal with the Father. പിതാവിനോട് തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലും തത്തുല്യനായി. प्रभुत्व में परमेश्वर के साथ में, वो सुंदरता में और महिमा में, सभी बातों में वो तुल्य था. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പക്ഷേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉരിഞ്ഞു വെച്ചു. हमारा और परमेश्वर का रिश्ता वापस रिस्टोर करने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्रभुत्व को शून्य बना देता है. ഓർക്കണേ, യേശു ദൈവത്വം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर बनने से नहीं रोका है. സ്തോത്രം. He did not give up or he did not empty himself of the deity. ദൈവത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. वो परमेश्वर का स्वरूप तो उसको छोड़ देता है, मगर खुद परमेश्वर ही रहता है. ഈശ്വരത്വ को कभी नहीं त्यागा. സ്തോത്രം. അതൊക്കത്തില്ല. वो ईश्वरत्व को कभी वो त्याग नहीं सकता है. സ്തോത്രം. നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ? हम तो मनुष्य हैं. മനുഷ്യത്വം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? क्या हम में मानवता कभी हम हो सकते हैं? ഹ്യൂമാനിറ്റി. നാം മനുഷ്യരാണ്. ആ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. हम मनुष्य हैं, इसीलिए मानवता कभी हम
त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। അതിലുപരിയാണ് യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ളത്. इससे परे है यीशु परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। അതുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. इसीलिए वो उसका ईश्वरत्व वो कभी नहीं त्यागता, പക്ഷേ ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്വം യേശു ഉപേക്ഷിച്ചു. मगर ईश्वरत्व का जो है महिमा को वो त्यागता है। സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ആ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഡീറ്റി. സ്തോത്രം. ആ ദൈവത്വത്തിനൊരു മനോഹാരിതയുണ്ട്. वो ईश्वरत्व कहने के लायक एक मनोहरता है, एक महिमा होता है। उस मनोहरता और महिमा को वो त्यागता है। സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്വത്തിന്റെ രൂപം വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രൂപം ഏറ്റെടുത്തു. इसीलिए परमेश्वर का स्वरूप को त्याग कर जो है मनुष्य का स्वरूप में आ जाता है। ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ? സ്തോത്രം. യേശു ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം വിട്ടു. यीशु परमेश्वर का स्वरूप को त्याग देता है। സ്തോത്രം. ഇന്നലെയും നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു. कल भी पढ़ा हुआ एक वचन हम पढ़ेंगे आज। യോഹന്നാൻ 17-5 വാക്യം. यूहन्ना 17 अध्याय का 5वां वाक्य। Now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Stop. What did Jesus have with the Father before the world existed? സ്തോത്രം. The glory Jesus was possessing even before the world was created. ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ പിതാവിനോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. इस दुनिया की सृष्टि करने से पहले ही यीशु मसीह जो परमेश्वर के संग थे, दोनों एक महिमामय अवस्था में दोनों रहते थे। സ്തോത്രം. എന്നാൽ ആ മഹത്വത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം യേശു ഊരി വെച്ചു. और धरती पर आने से पहले अपने आप के ऊपर की महिमा को वो निकाल कर बाजी में रख देता है। സ്തോത്രം. ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല, उसे त्यागता नहीं है, അത് ഉരിഞ്ഞു വെച്ചത്. उसको कपड़े जैसे निकालता है वैसे निकाल कर रख देता है। ഏതാണ്ട് 34 വർഷം കഴിഞ്ഞു. लगभग 33 या 34 साल हो गए। 10 മാസം വയറ്റിൽ കിടന്നു. 10 महीना माँ के गोद में था 33 വർഷത്തിലധികം ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. और 33 साल से ज्यादा इस धरती पर जीवन बिताया उसने। അതുകൊണ്ടാണ് 34 പ്ലസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. इसीलिए कहा कि 34 साल से ज्यादा समय बिताया। അപ്പോൾ ഈ 34-ലധികം വർഷങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഇതൊന്ന് ഉരിഞ്ഞ് മടക്കി വെച്ചത്. और 34 साल से थोड़ा ज्यादा के लिए अपना महिमा का वस्त्र जो है उसने निकाल कर रख दिया। 34 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിനോട് ഇപ്പൊ പറയുക, പിതാവേ, ഞാൻ ആ ഉരിഞ്ഞു വെച്ച മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകണം. और अब वो प्रार्थना करता है कि मैं जो निकाल कर रखा हुआ महिमा का वस्त्र जो है वो मुझे पहना देना। സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഉരിഞ്ഞു വെച്ചത്? यीशु ने हमारे लिए क्या छोड़ कर रखा है? രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ദൈവസ്വരൂപം. दूसरा बात है परमेश्वर का स्वरूप को, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, परमेश्वर की महिमा को ദൈവത്വത്തിന്റെ മനോഹാരിത, और परमेश्वर की मनोहरता या सुंदरता को അത് യേശു കുറെ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. वो हमारे लिए यीशु मसीह ने कुछ समय के लिए निकाल कर रखा। സ്തോത്രം. എന്തിനാ? किसके लिए रखा? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. आज 2 बातों को हमने सीखा है। യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച, തന്നെ താൻ ശൂന്യമാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. हमने सीखा कि यीशु मसीह 2 वस्तुओं को अपने से हटा कर निकाल देता है। वो 2 वस्तु क्या क्या हैं? ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം. पहला है परमेश्वर के साथ का स्वरूप को छोड़ देता है। എന്തിനായിരുന്നു അത്? वो किसके लिए था? वो To make you and me into the image of God. ताकि हमको परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वरूप को, परमेश्वर का स्वरूप को बाजू में रखा। To grant us equality
with him. और यीशु मसीह के तुल्य हमको भी बनाने के लिए उसने ये स्वरूप को अलग रखा। നമ്മെ തന്നോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ യേശു പിതാവിനോടുള്ള ആനുരൂപ്യത്തെ നമുക്കായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. यीशु मसीह जो परमेश्वर के तुल्य था उसने उसे छोड़कर रखा ताकि हमको उसके परमेश्वर के तुल्य हमको भी बना दे। അത് ഓർക്കണം നാം ഈ മേശയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. इन बातों को स्मरण करना है जब हम प्रभु भोज से जब भाग लेते हैं। രണ്ട്, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഉരിഞ്ഞു വെച്ചത് ദൈവസ്വരൂപമാണ്. परमेश्वर के स्वरूप को या महिमा को उसने निकाल कर बाजी में रखा। സ്തോത്രം. എന്തിനു വേണ്ടി? किसके लिए था वो? ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മെ തന്റെ തേജസ് ഉടുപ്പിക്കുക. ताकि हमको वो महिमा का वस्त्र पोशाक पहनाने के लिए, നമ്മെ തന്നോട് അനുരൂപരായി തേജസ്കരിക്കുക. ताकि उसी के परमेश्वर के समान महिमा प्राप्त हम भी कर सके उसी के लिए। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പാപം നിമിത്തം ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ ദൈവ തേജസ്സിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്വം മാറ്റിവെച്ചു. तो हम जो परमेश्वर के महिमा में रहते थे मगर पाप के फलस्वरूप उस महिमा को खो दिए, उस महिमा को वापस ओढ़ने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को त्याग कर दूर रखते हुए मनुष्य के रूप में आ गया। ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ നോക്കാം. ये दो बातों को खास कर याद रखना जब हम इसमें प्रभु भोज से भाग लेते हैं। നന്ദിയുള്ളവരായി നമുക്ക് ഈ മേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. हम एक धन्यवाद के हृदय के साथ इसमें से भाग लें। നമ്മെ തന്നോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ മഹത്വം ഒഴിഞ്ഞു വന്ന മശിഹ, वो अपने तुल्य हमको बनाने के लिए जो उसकी महिमा को त्यागा हुआ परमेश्वर है वो। അതിന്റെ സ്പെക്ടാക്യുലർ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമകാഷ്ഠയായിരുന്നു കാൽവരി. और उसके प्रेम का भावना को प्रकट करने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ दृश्य था कलवरी क्रूज पर। ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ സ്തോത്രം, പൂർണ്ണ നഗ്നനായി നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവ്, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पूरी नग्न अवस्था में सूली पर लटकाया गया था। സ്തോത്രം. യെശയ്യാവ് 53 പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്രം, കാണുന്നവർ മുഖം തിരിച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായി. वो इतना निंदित हो गया था, जो भी उसे सूली पर देखते थे अपना मुंह फेर लेते थे वो। അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ആക്കപ്പെട്ടു. और उतना भयावह अवस्था में यीशु मसीह को यातनाएं सहा उसने। കഷ്ടതകളാൽ അവൻ തികഞ്ഞവനായി. यातनाओं से वो सिद्ध हो गया। He was perfected in suffering. वो अपने सभी यातनाओं में वो सिद्ध हो जाता है। സ്തോത്രം. He learned obedience through suffering and made perfect എന്നാണ് എബ്രായർ 5 നാം വായിക്കുന്നത്. अपनी ताड़नाओं के द्वारा वो आज्ञाकारिता में वो सिद्ध बन जाता है। ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്കും അനുസരണത്തിനായി ഈ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रेम में हो जाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। ക്രിസ്തുവിന് നമ്മോട് തോന്നിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ മേശയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു. परमेश्वर ने हमसे की हुई प्रेम की गहराइयों को जान करके हम इस प्रभु भोज में से भाग लें। നമ്മെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം. हम अपने आप को अंदर से भीतर में जांच लें। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. हमारे जीवन के अधर्म या पाप के बातों को परमेश्वर के सामने कबूल करें। എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച യേശുവേ, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ശൂന്യനാക്കിയ യേശുവേ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള നാളുകൾ വിശുദ്ധിയോടെ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. हम अपने आप में परमेश्वर के सामने इस प्रकार कन्फेस करें कि हमारे पापों के बिना हालेलुया धर्मों के तू जैसा हमसे प्रेम करता है उसी प्रकार आपसे प्रेम कर एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ कर। യേശു സ്വർഗത്തിലേതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും നാം ലോകത്തിലേതുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ
കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ക്ഷമ യാചന നടത്താം. परमेश्वर होकर भी, उसके स्वरूप में होकर भी उसको शून्य बना दिया, उसकी महिमा में भी उसमें वो शून्य बन गया, मगर हम अपने दुनिया के प्रेम को, दुनिया के बातों को छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं होते हैं। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ? सभी लोग हमारे साथ हैं। ഈ സമയം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനും ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കാനും ഉണ്ട്. हम सब अपने आप में जांचे और सूली की ओर स्मरण करें। സ്തോത്രം. നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന പാപങ്ങളെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുക. हमारे जीवन में पिछले हफ्ते घटी हुई सारी पापों को उसके सामने कबूल करें। യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ കഴുകുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. यीशु मसीह के लहू से धोने के लिए अपने आप को उसके सूली के नीचे ഈ लाएं। അപ്പവീഞ്ഞുകൾ നമുക്കാർക്കും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരരുത്. ये रोटी और दाखरस जो है हमारे दंड का कारण न बने। സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. सभी लोग सूली को स्मरण करें। പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളവർ. जो भी खासकर प्रभुवोध से भाग लेना चाहते हैं वैसे लोग। സ്തോത്രം. വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരരുത്. हमारे मन में इस समय और कोई बातें न लाएं। വേറെ എങ്ങും നാം ശ്രദ്ധിക്കരുത്. किसी और बात की ओर हमारा ध्यान या लक्ष्य न जाए। ധ്യാനിക്കാനിരുന്നിട്ട് ആരും ഉറങ്ങരുത്. कोई ध्यान करने बैठकर सो न जाए। സ്തോത്രം. കർത്താവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നോണം. अगर परमेश्वर में आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो प्रभुबोध से भी दूर रहिएगा। സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. आज सुबह अपने आप को समर्पित करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ ഈരടി ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ यीशु मसीह के कष्टों को स्मरण दिलाने वाली कोई भी भाषा में गीत हम गा सकते हैं इस समय। आपसे करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान, क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जान, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जान, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा, इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर हमारे लिए जगत में आया, क्रूस पर अपना जीवन को दिया।
उसी की स्मरण में जब इस प्रभु भोज में आते हैं, आइए अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। हमारे जीवनों को सौंप करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। Glory to God. Hallelujah. प्रेमी पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कष्टों को स्मरण करते हुए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस रोटी में से और प्याले में से भाग लेना हम किसी के लिए दंड के कारण ना हो, हमारे जीवनों को पवित्र करने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। इस रोटी को और इस प्याले को आप आशीष दें, ताकि प्यारे प्रभु जी हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे हृदयों को आपकी ओर लगाकर रखने के लिए मदद कीजिए। इस सेवकाई में आपकी उपस्थिति हमारे संग रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की वचन में लिखा है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और पिता को धन्यवाद देकर के तोड़कर अपने चेलों में। आइए प्रभु यीशु मसीह के कलवरी पर काटा गया अपना शरीर के स्मरण में हम इस रोटी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद देकर के तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर है, जब कभी भी तुम ये किया करो तो मेरी स्मरण के लिए किया करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की कलवरी के क्रूस पर विश्वास करके पापों से मन फिराए और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और जी उठने के समानता में बपतिस्मा लिए हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए और यीशु मसीह की आगमन की बाट जो होकर पवित्र जीवन बिताने वाले प्रियो, यीशु मसीह के क्रूस को स्मरण करते हुए आइए हम इस रोटी में भाग लें। मुझे पापी ने क्या देखा था, प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे लिए क्रूस पर जब कभी भी पापी ने क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मिला था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न
कोई भी नहीं, कोई कोई नहीं, कोई को भी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। उसी तरह बयारी के पीछे यीशु मसीह ने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा कि ये नई वाचा में मेरे लहू है। तो आइए इस प्याले के लिए भी रोटी हमें आशीषित करके दिया, इसीलिए भी मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। बयारी के पीछे यीशु मसीह ने कटोरा लिया और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देकर अपने चेलों को दिया और कहा कि यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी तुम ये किया करो तो मेरी स्मरण के लिए किया करो। तो आइए प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया हुआ लहू के स्मरण में हम इस प्याले में भी भाग लेंगे। जिन पवित्र लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की द्वारा उद्धार पाकर रोटी में भाग लिए थे, आप इस प्याले में भी भाग ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया था, जब कभी भी तुम ये किया करो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। प्रभु यीशु मसीह का लहू सलीब पर मुआ, संभाल खून की लहू से बह गई, मिट गए पाप, लहू से सलीब पर मुआ, महान दुख सहा, मेरे लिए बागों को धो डालो,
सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए ऐसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए। सबको रोटी और प्याला मिल गया ना? कोई छूटे तो नहीं? थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस की पत्रिका, पहली पत्री 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक की वचनों को पढ़ें। पढ़ो। वो माइक दे दो। For yourselves know perfectly that the day of the Lord cometh. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Comfort one another and edify one another. मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमको प्रभु ने रात के लिए नहीं बुलाया है, हम ना ही रात के संतान हैं, परंतु हम दिन के और ज्योति के संतान हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार रहें। जो लोगों ने प्रभु भोज में भाग लिए, आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि दिन हो या रात, हम प्रभु की आगमन के लिए तैयार रहें। एक दूसरे से प्रेम करते हुए और एक दूसरे को आत्मिक उन्नति की बातें देते हुए, एक दूसरे को हियाव दिलाकर, हिम्मत देकर आगे यीशु की आगमन की बाट जोतते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे प्रभु आने वाला है। लोगों को हम प्रभु यीशु के बारे में बता दें, सुसमाचार हम सुनाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, संगति रखें, प्रेम करें, क्षमा करें। यीशु की आगमन की आशा में ये सब कुछ हम करते हुए, प्रार्थना में और वचन पढ़ने और मनन करने में लौलीन होते हुए हम तैयार रहें। उसके लिए प्रभु हम सबके जीवनों में सहायता करेंगे। आइए हम सभी समय खड़े हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा का एक गाना गाएं। भाई लोग भाइयों के साथ में
बहनों के साथ में गले मिलकर प्रभु की आगमन की आशा को हम बांटेंगे और उसके बाद भाइयों में से एक जन कम शब्दों में प्रार्थना करेंगे। നിറവേറുമേ ഒരുങ്ങി. Praise the Lord. പല വ്യാധികളാൽ ജനം യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളോടടുത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങീട. രാജ്യങ്ങളോടടുത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങീട. താമസമേറെയില്ല, വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. തുടങ്ങിക്കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നേർത്താഴ്വരയിൽ അല്ലയോ. ഒരുങ്ങീട, ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക്. ഒരുങ്ങീട, വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. വന്നിടുമേ 10,000 പേർകളിൽ. ഹല്ലേലൂയ. हमें दिखाया,
इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु हम जो कुछ भी लेते हैं प्रभु आपने हमें चुन लिया पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया, हम धन्यवाद देते पिता, हालेलुया। इस छत के तले प्रभु हमें आने के लिए आपने सहायता मदद किया, और आपकी मेज में प्रभु जी शामिल होने के लिए भी हमें सहायता किया प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु जी इस छत के तले रहने वाले तमाम, हालेलुया, परिवार वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनके आने जाने में और उनके कार्यों में प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम आशीष से प्रभु आत्मिक बातों में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धार देने वाले जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता, हालेलुया। प्रभु इस समय तक आपने संभाला प्रभु, आपकी आत्मा ने वचन से प्रभु हमारे जीवनों से बातें किया राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हालेलुया, हमको विजन आपके पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु, आगे के भागों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिएगा, चिल्ड्रन कम ऑन। How can we have it? All our sins are raised to bear. All the privilege to carry everything to God in prayer. All the friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Psalm 119 verse 127. Therefore I love God's commandments more than gold, yes, than Bible. भजन संहिता 119 का 3। धन्य है जो साथ परिवार प्रभु की आशीष करता है। 2 Peter 3 verse 30 and 13. Nevertheless, we according to his promise, look for ignorance as you are the righteousness works. Therefore, see that you look for such things, diligent and purified, and peace is without sports and grievance. ऑनलाइन में बच्चे लोग कोई है? So this believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Acts 16 verse 31. The little that the righteous person has is better than the abundance of many wicked people. Psalms 38 verse 16. प्रार्थना करें इन बच्चों के लिए, हमारे तमाम छोटी जूड़ी से लेकर सभी जवान बच्चों तक सबों को प्रभु के हाथों में हम सौंपे। और शोभा आप प्रार्थना करें। आशीष शोभा वॉशरूम में।
याद कर लीजिए। जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर राजा प्रभु, हालेलुया। इस हालेलुया परमेश्वर राजा, हालेलुया परमेश्वर, इस पवित्र दिन में प्रभु प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं खास करके बच्चों के लिए परमेश्वर राजा, हालेलुया। जो जो बच्चों ने परमेश्वर राजा हालेलुया वचन बोले परमेश्वर, हालेलुया प्रभु प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हम हालेलुया हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पढ़ाई में लिखाई में, हालेलुया, उनके परमेश्वर राजा, हालेलुया परमेश्वर राजा, हालेलुया, स्कूल जाते समय आते समय यात्राओं में प्रभु उनकी बढ़ोतरी में, हालेलुया, उनके हालेलुया आत्मिक बढ़ोतरी में, सारी बातों में आप आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर राजा, हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर राजा, हालेलुया, एक एक बच्चे परमेश्वर, हालेलुया, आपके राज्य के लिए परमेश्वर एक खंभा बनकर, हालेलुया, खड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, संसारिक बातों में ना भटके परमेश्वर राजा, हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट के चाल में ना फंसे परमेश्वर राजा, हालेलुया, हालेलुया, खास करके हालेलुया हमारे जवान बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया प्रभु, तो सभी को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया प्रभु, तेरी उपस्थिति में हालेलुया बने रहने के लिए, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर राजा, तू हालेलुया परमेश्वर राजा, हालेलुया उन्हें संभालने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, हालेलुया परमेश्वर राजा, उनके माँ बाप को भी प्रभु आपके हाथ में देते तेरे भय में, हालेलुया उन्हें चलाने के लिए, हालेलुया तू सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक बच्चों को आपके हाथ में देते परमेश्वर राजा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर राजा, हालेलुया, आने वाले में दिनों में परमेश्वर राजा आपके लिए गवाही बनकर वे लोग हालेलुया खड़े रहने के लिए प्रभु सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते, हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु, सारे विषय को आपके हाथ में देते, सारा स्तुति आदर महिमा सब केवल आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कर मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you, children. ऑनलाइन में कोई है गवाही देने के लिए, आपको पहला अवसर देते हुए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबको अपनी जगह पे सुरक्षित अब तक संभाला है। तो उपास प्रार्थना में बैठने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। कुछ दिनों पहले ही अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए उपास लेके परमेश्वर ने एक बोझ दिया था, और उसी प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और वचनों के द्वारा भी जो आत्मिक जरूरतें थी वो परमेश्वर ने पूरी करके दी, इसलिए धन्यवाद करते। आज सुबह आप लोगों के बीच में आना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाए। आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा आना आपके उधर होने के लिए, ऑफलाइन संगति होने के लिए, और भी प्रभु बोझ देने के लिए, आप हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। जो आपका चंगा करें जरूर। और कोई? तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग हैं, कोई धन्यवाद और प्रार्थना की बातें बताना चाहेंगे तो आपके लिए अवसर।
यही तो समाचार है। मैं भी पूरे जीवन में बस क्योंकि प्रभु ने मैंने जिस तरह से सुना है समझ में कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे हमने हमारे जीवन में जिस तरह से हमें देखो करने वाला सामर्थ्य हो हमारे बच्चे सामर्थ्य उन्हें उसी तरह से पढ़ाने के लिए प्रभु सवाल पे मदद करें। आप समझते हैं कई दिनों के बाद में परमेश्वर के दास ने वापस आते और आपके विषय के साथ एक संगति मुझे परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान करते हैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद विशेष करके इतने दिनों में हम जहाँ पे भी परमेश्वर ने अद्भुत समय हमारे जीवन में कई प्रकार के परमेश्वर संकट आए लेकिन परमेश्वर मरे रहने के लिए परमेश्वर इसे तक समझते थे उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज के विश्वास में भी धन्यवाद देते हैं। हम देखते दिखते लोग जो आज के दिन को नहीं देखते हैं हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जिंदा और जीवित रखा और विशेष करके पवित्र लोगों के साथ मिलकर एक आराधना करने के परमेश्वर ने जो अवसर प्रदान कर दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं विशेष करके इसके इंसिया टीवी में धन्यवाद देते हैं विशेष कर दास परिवार के लिए जो बीते दिनों से लेकर जब से हमें परमेश्वर ने चुनकर अलग किया और उनके द्वारा जो हमें बपतिस्मा दिया गया और हर समय वो चाहे हम उनसे दूर रहे बातचीत हो लेकिन वो हमारी चिंता करते इसलिए धन्यवाद और भी मैं अपने परिवार के विषय को लेकर आपके सदस्यों को विषय रखना चाहती हूँ और उन्होंने काफी कष्टों में जीवन काल में बातों को आप सभी लोगों से मैं विनती करती हूँ कि आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए विशेषकर मेरे भाई ये पारिवारिक जिंदगी में समस्या है समस्या को परमेश्वर दूर करने और परिवार मिलकर रहने के लिए सहायता करें इस विषय को लेकर आपकी प्रार्थना कीजिए और गांव में मकान बन रहा है मकान बनने के लिए काफी दिन 7-8 महीने गए कभी भी मकान में काम शुरू होकर उसमें बिल्कुल रुकावट आ रही है आप सभी लोग मिलकर उसकी लिए प्रार्थना कीजिए और हम 4 महीने भाई की मम्मी है और आर्थिक रूप से भी हम लोग इतना सक्षम नहीं है हमारे पास में कोई ऐसी खास नौकरी भी नहीं है फिर इसलिए मेरे से छोटी बहन देखा है उसने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है अच्छे वो भी पढ़ाती थी मेरे साथ लेकिन अभी कई सालों से करते रहती हूँ उसके लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे भी पिछले 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी लेकिन अभी वहाँ पर मेरे भी जॉब में रुकावट आ रही है कुछ लोग मुझे वहाँ से निकालना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलकर मुझे कहीं और भेजकर मेरे लिए वो स्थान से निकालने की कोशिश कर रही है तो आप सभी लोग मेरी प्रार्थना कीजिए और मैं भी आप सबको प्रयास करके आपको प्रार्थना करूँगी छोटी सी दवाई के बारे में बैठना
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है दोहराई का है, जगत और उसमें निवास करेगा। ये परिवार के लिए आप लोग विशेष प्रार्थना कीजिएगा। खंडारे परिवार आप याद रखिएगा। जैसे आशा ने बताई, सब लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े वाले दोनों टीचर्स हैं, उनसे भी बड़ी वाली हैं, वो भी आंगनबाड़ी में टीचर है। लोग दोनों BA MA BEd किए हुए हैं। छोटी वाली ममता इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इन्हीं कुछ सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया जो तरक्की उनमें होना चाहिए वो कई बार नहीं होते हैं और कई समस्याएं उस परिवार में हैं। ऐसा परिवार था कि शैतान ने बिल्कुल उसको क्या बोल सकते हैं, चूस करके एक फेंका होगा, लेकिन उस अवस्था से प्रभु ने उन्हें छुड़ाकर अभी तक ले आया है और इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आगे भी आप लोगों की प्रार्थना हम चाहेंगे। तो बुजुर्ग माता जी अभी भी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, शरीर में कमजोर है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। पीछे भी सुनाई दे से उन्होंने बताया उसमें भी लेकर गए थे, वो दो दिन के बाद बुलाया था, तो कल गए थे, बकरा भी बताया नहीं क्या हुआ है, तो पास्टर को भी बताया नहीं, तो उन्होंने तो पास्टर को डर गया था, उनको बताया था, हम अंकल बच्चे के हॉस्पिटल ले गया, तो ये बहुत ज़्यादा ही है मेरे से। तो आप एक लड़की लेकर के ऐसे कुछ ना हो माइक की जगह खींच के लेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे परिवार के साथ आने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। मैं धन्यवादित हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, बीते दिन बेटी बीमार थी और लगभग घर के सभी लोग भी बीमारी थे। एक जन को स्कूल से लेके आया, फोन आया कि रोहन का तबीयत खराब, चक्कर आ रहा है उसको, तो उसको लेके आया। फिर फोन आया 1 घंटे बाद, अंश को भी उल्टी हो रहा है। तो ऐसे करके तो मैं धन्यवादित हूँ कि सही समय पे मुझे भी परमेश्वर ने परिवार के बीच में रखा और अब तक सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। और काबू पे भी परमेश्वर ने आशीष दी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक बातों में भी परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में प्रतिदिन महसूस करता हूँ, बच्चों में, परिवार में। आप लोगों से प्रार्थना चाहता हूँ कि मेरा परिवार जो माता पिता है, भाई बहन है, जो विश्वास में नहीं है, आने वाले दिनों में प्रभु को ग्रहण करे। और एक प्रार्थना है, काफी काफी सालों से ये घर गया नहीं हूँ, सो एक बार घर जाना चाहता हूँ पूरे परिवार के साथ। कुछ नहीं तो लगभग 7-8 साल हुआ। उसके लिए मैं उन बातों को, उनके बीच में भी जाऊं, सबों से मिल पाऊं। सो इसके लिए प्रार्थना कीजिए।
परमेश्वर उसके लिए भी मुझे मार्ग खोल के दे। प्रेज़ लॉर्ड।